5 मार्च 2021 को मुझ पे अटैक हुआ। मुझ पे मेरी फैमिली पे अटैक क्यों किया गया? 7 कुंजा की 107 151 की कार्रवाई के चलते अपराधियों के लिए यहाँ पर आकर तारीख भुगतनी पड़ती थी। वह फ्रस्ट्रेशन के तहत उन्होंने मिले एक सोचा समझा प्लान के तहत मुझ पे अटैक किया, मेरी फैमिली पे। मेरी ननद को खींचा, उसको घर के अंदर लेके किडनैप करके उसके इज्जत पे हाथ डाला। सर कब्जे चौड़े बाजार चो होए ने फड़ियां दे ਉਹਦੇ खिलाफ एसडीएम ने ऑर्डर दिता है 10 तरीक का। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। थानेदार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਰੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। वकील एकता जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्ले लाडे गुडे हाय 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 वो मोबाइल छड़ के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੇ 50 ਕੇਸ ਭੇਜ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰ BCI ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। 24 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 4 ਇੱਧਰ ਖੜ ਗਏ, 4 ਇੱਧਰ ਖੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ SHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, ਚੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। ਸਰ 4 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 6 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪਰਚੇ ਹੋ गए। मेरा नाम एडवोकेट नीरज चंदेल है। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के साथ हिमाचल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। लुधियाना में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी शादी लुधियाना में 2020 में 11 अक्टूबर को हुई। उससे पहले पूरे साल भर में 2020 में शुरू से लेकर तंग करते आ रहे कमलजीत कौर, राजवीर सिंह मठारू उसका लड़का, जो उसका हस्बैंड है कमलजीत कौर का सरबजीत सिंह, जो कि नशा केंद्र में छोड़ा गया था। इस लेडी ने कमलजीत कौर ने, जबकि उसका इलीगल रिलेशनशिप मनदीप सिंह मन्नू के साथ था, तो उसने उसको जानबूझ के छेड़ा और वहाँ पे रखा और इलीगल धंधे करते थे, इलीगल काम करते थे और स्मगलिंग का काम भी करते, नशा की भी। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आने वाले और सारे लोग गंदे काम करते थे, जिसकी वजह से मेरी ननद घर पे होती थी, मेरी सासू माँ घर पे होती थी, उनके ऊपर वो गलत तरीके से नज़र रखते थे। लड़की बाहर पढ़ने जाती थी, उसके पीछे गुंडे लगाते, छेड़खानी करते थे। जब इस चीज़ का विरोध करने के लिए मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने उसे कहा कि ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं इन लोगों का आना या तो बंद कर दो या इस तरह की हरकतें बंद कर दो। इसकी
एवज में उन्होंने हटाना तो कहा था, ऊपर अटैक कर दिया। अटैक की फुटेज हमारे वीडियो फुटेज हमारे पास है। डुगरी थाने में हमने जून 2020 को हमने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में उठ के कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। अगले दिन से वो लड़का जो राजवीर सिंह मठाड़ू है, कमलजीत कौर का लड़का, वो बालकनी में आकर अपने अंग प्रदर्शन करना, लड़की बाहर आती है, मदर इन लॉ बाहर आती है, गंदी हरकतें, गंदी अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलना, मास्टर बीट तक करता। मुझे बोलते हुए शर्म आती है। वो लड़का मास्टर बीट करता, ओपनली करता, उसकी वीडियो कैप्चरिंग हमारे पास है। वो सारी दिखाकर भी हमने पुलिस को हमने जब कंप्लेंट किया तो पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। एएसआई मंजीत सिंह आता है, वो कहता है कर दिया तो क्या हो गया, ये लोग अगर तुम्हें तंग करते हैं तो क्या हो गया। हमने सिर्फ इतना कहा जी एक्शन तो लीजिए, कम से कम इस लड़के को हटा तो दीजिए। देयर आफ्टर मेरी मैरिज यहाँ पर 11 अक्टूबर को 2020 को हुई। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पर एडवोकेट हूँ, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर इनके साथ मेरे हस्बैंड है ये साहिबदीप सिंह जी। इनको प्रेशराइज करके जसकरण सिंह तेजा ने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, मैं तुम पे 354 का झूठा पर्चा डालूंगा। जो बात उन्होंने उस टाइम की नहीं कर सके, उन्होंने 10 मार्च 2021 को हमारे ऊपर मेरे ही कंप्लेंट के लिए मेरे ही खिलाफ FIR बनाकर पर्चा करके साबित भी कर दिया। सर मैंने 5 कंप्लेंट्स दी। पर्सनली खुद अपीयर होती थी CP साहब के पास। कई बार तो मुझे अंदर मिलने भी नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे CP साहब अग्रवाल साहब थे, राकेश अग्रवाल जी थे। मैंने जब उनके पास कंप्लेंट लेके जाना तो उन्होंने कहना कोई नहीं एक्शन लेते हैं, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आपकी कंप्लेंट। फॉरवर्ड होती थी इनके पास से, मैं बुलाया कभी नहीं जाता था। जी मैं धरना लाया इसलिए लेके आई हूँ धरने के लिए, अपने लिए, अपनी ननद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। मेरे जैसे और एडवोकेट भाई लोग पीछे खड़े हैं और बहनें भी खड़ी, उनके साथ भी धक्के होते हैं। पुलिस स्टेशन जी बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे पुलिस के ऊपर हम भरोसा करते हैं। इनके पुलिस के केस भी हम लोग करने के लिए एडवोकेट हैं, हम तैयार होते हैं इनके केस करने को, लेकिन हमारे साथ ही धक्का करते हैं, हमारे लिए ही ये गलत करते हैं। हम इनके ऑफिस में जाते हैं। अभी रिसेंट में मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड पे 11 अप्रैल 2022 को यहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में यहाँ पर तारीख थी हमारी। जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड पार्किंग में उतरते हैं, ठीक है, उतरते ही ये गाड़ी से बाहर निकले हैं मेरे हस्बैंड, उन्होंने उठा के मनदीप सिंह मन्नू और राजवीर सिंह मठाड़ू के साथ 7-8 लड़के आकर इन पे अटैक कर गया। पीछे मुड़ने सोचने का वक्त भी नहीं दिया। और उसके बाद सर मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगी। धरना कब तक रहेगा? जब तक जस्टिस नहीं मिला। पर मैं ये कहूँगी उस दिन अटैक किया, उसके बाद हमने जुवेनाइल कोर्ट के बाहर आना था। मैंने कंप्लेंट दी, मैंने कंप्लेंट भी दी पुलिस प्रशासन को कोर्ट कैंपस में, वहाँ कोई एक्शन नहीं उठाया। उसके बाद CP साहब के पास मिलने गए, CP साहब ने कहा मैं अपनी आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप जितनी भी मेरी कंप्लेंट्स हैं, मेरी कंप्लेंट इंक्लूडिंग जितने मेरे भाई लोगों की और की कंप्लेंट है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ FIR की जाए, कड़े से कड़ा इनके लिए सबक दिया जाए, क्योंकि इन्हें जो दोषियों के लिए उनके मन से वो डर हट चुका है कि पुलिस भी कुछ एक्शन ले सकती है। मुझे ACP साहब के पास भेजा गया था 11/4 वाला जो मैटर के लिए जो फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन वहाँ पर मुझे ACP साहब मुझे खुद कहते हैं तो क्या हो गया अगर तुम्हारी सिस्टर इन लोगों को किडनैप कर रहे हैं। वो मुझे ये कहते हैं तो क्या हो गया तुम पे अगर अटैक हो गया, तो क्या हो गया अगर यंग प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या हो गया वहाँ पे अगर तुम पे कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं। मैं कहा सर आप कम से कम कार्रवाई तो कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। उल्टे मैं एक काम करता हूँ, तुम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो आउट ऑफ टेबल तो मैं करवा दूंगा, मैं लीगली कुछ नहीं करूँगा, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा। मैं कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर से आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा कैंसिल कर दूंगा लाइसेंस। किसने अथॉरिटी दी उनको कि मेरा लाइसेंस या किसी भी वकील का लाइसेंस आप कैंसिल कर दें। हम लोग यहाँ पढ़ लिख के दूसरों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम केस करते हैं। जो लोग जस्टिस नहीं ले पाते उनके लिए हम खड़ते हैं, और ये पुलिस वाले हमें कहते हैं कि हमारा आप लाइसेंस कैंसिल कर दोगे। मैं अभी CP साहब से नहीं मिलने के मूड में हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनसे पहले मिले, उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि धक्का हो रहा है सर, आप सिर्फ अपनी तरफ से खाना पूर्ति करके अपनी मार्क कर देंगे कि मैंने फलाने फलाने ऑफिसर को मैंने अपनी कंप्लेंट को भेज दिया है। कुछ नहीं हुआ, आज भी क्या होगा। उसके बाद एक अटैक मुझे कोर्ट में हुआ, और अटैक का वेट करते रहे, और एक दिन मुझे पे गोली चल जाएगी, फिर कौन जिम्मेदार होगा। मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी मुझ पर असॉल्ट हुआ। 5 मार्च 2021 को मुझ पे अटैक हुआ। मुझ पे मेरी फैमिली पे अटैक क्यों किया गया?
7 कुंजा की 107 151 की कार्रवाई के चलते अपराधियों के लिए यहाँ पर आकर तरीक भुगतनी पड़ती थी। वो फ्रस्ट्रेशन के तहत उन्होंने मिले एक सोचा समझा प्लान के तहत मुझ पे अटैक किया, मेरी फैमिली पे, मेरी ननद को खींचा, उसको घर के अंदर लेके किडनैप करके उसके इज्जत पे हाथ डाला सर।